So welcome all again to this 7th video of this 10 video MCQ series of anatomy MCQs for mainly our FMGE exams. Hello everyone, I am Doctor Ankit Khandelwal, Professor of Anatomy and Anatomy Faculty at LN Next Platform. Let's start the first MCQ. The question says a 78-year-old man comes to the physician because of shortness of breath, dizziness and fainting spells. Physical examination shows the distended neck veins and peripheral edema. A popping sound is heard on auscultation of the heart. An echo shows a large mass rising from the smooth part of the right atrium. Okay, so there are all these symptom signs of the serious issues, and echo is showing a mass arising from the smooth part of the right atrium. This region of the atrium derives from which of the following embryonic structure? So now basically it's embryology question. They're asking that there is a mass which is coming from the smooth part of the right atrium. So right atrium, smooth part, not the rough part. And they're asking that this smooth part from where the mass is coming from which embryological structure. The options over here are bulbous cordis, primitive atrium, primitive ventricle, sinus venosus. So basic knowledge should be there that okay, we can rule out primitive ventricle, we can rule out bulbous cordis because that forms the outflow of the ventricles and pulmonary trunk and aorta. Now we are left with B and D, right? Now the primitive atrium, right, it forms the rough part. It forms the rough part of the atrium, meaning the pectinate muscles, and the answer therefore is our option number D, sinus venosus, because what is entering into the atrium are the veins, and the dilated veins are known as sinus venosus. Okay, so when the veins, the large veins enter into the atrium, they form a smooth part, or you can say the posterior wall of the right atrium. That is what they are asking this particular question, and therefore answer is our option number D. Question is embryology of the heart, serious embryology. We should be well aware with this particular figure over here, showing us the venous end, caudal end, and the arterial end, the cranial end. So at the cranial or the arterial end, what we have over here the bulbous cordis, which is forming this truncus arteriosus. From the venous end, we have the sinus venosus, which is entering into where? Primitive atrium. And from primitive atrium, the blood goes via IV canal into primitive ventricle. Now coming to the question, in the question they asked the smooth part. Now the sinus venosus, it's a right horn forms sinus venom part of the right atrium. Which part? The smooth part. Why? Because the wall of the vessels are smooth for streamline flow. Okay, so therefore option number D, the sinus venosus, will be our answer over here. Coming to the second question. A 5-year-old boy undergoes surgical repair of an indirect inguinal hernia, right? So kaun sa hernia hai? Indirect inguinal hernia. During the surgery, a structure is found in the structure in one of the medial umbilical folds. Which folds? Medial umbilical folds over here appears to be patent. Okay, so question hernia का, hernia याद रखिए, questions normally come, हर साल आप उठा के देख लीजिए, जो भी एग्जाम है आपके FMG का, साल में 2 बार आप देख लीजिए, hernia का एक क्वेश्चन इवन इन नीट PG, इवन इन I9 आता है. सो दे आर आस्किंग इंडायरेक्ट इंग्वाइनल hernia का एक पेशेंट है, 5 साल का बच्चा, एंड medial umbilical fold was found to be patent. Which vessel directly gives rise to the patented structure? और they're asking कि medial umbilical fold के बारे में कुछ पता है? So there are 5, कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 infra umbilical folds. Infra मतलब umbilicus के नीचे infra umbilical folds, जिसमें से कि out of this one is at the center, so we call it as median, एकदम बीचों बीच है. 2 इसके साइड में है, they are known as medial, है ना, and 2 again are more lateral, so they are known as lateral umbilical folds. So you have 1 median, 2 medial and 2 lateral umbilical folds. Question आया है हमारा medial umbilical fold के बारे में. Okay, we should be knowing it that जो हमारा ये median है, ये तो आ रहा है urinary bladder के आगे जो यूरेकस है, it is coming from there. Medial umbilical fold है हमारी umbilical artery. Okay, so this coming from the umbilical artery. जो lateral umbilical fold है, this coming from where, कहाँ से आ रहा है? It is from a peritoneal fold. Peritoneal fold होता है किस वेसल के अराउंड? Inferior epigastric artery. अब ये किसकी ब्रांच है सर? ये सर inferior epigastric artery ब्रांच है हमारे external iliac की, which is very important for distinguishing anatomically the direct from indirect hernia. और ये तो पूरी कहानी है. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मिडिल umbilical fold, umbilical artery. अब देखिए ऑप्शंस, abdominal aorta, external iliac, femoral, internal iliac. There is no option like umbilical artery. अब क्या करें? So we should know कि भाई दिस umbilical artery over here is actually as a continuation of the superior vesical artery. किसकी continuation है? superior vesical की. फिर ये भी ऑप्शन नहीं है.
सुपीरियर वेसिकल इज कमिंग फ्रॉम वेयर, इंटरनल इलियक आर्टरी, यही आंसर है। आंसर देयरफॉर क्या होगा हमारा, इंटरनल इलियक आर्टरी। अभी ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनल इलियक आर्टरी। सो नॉलेज एंड नॉलेज के ऊपर नॉलेज वी नीड इट। आंसर बनेगा हमारा इंटरनल इलियक आर्टरी। अगर ये फिगर आप देखें यहाँ पर, दिस फिगर ओवर हेयर इज बेसिकली टेलिंग अस कि भाई ये हमारा है, ये हमारा एओटा, एब्डोमिनल एओटा, दिस इज द कॉमन इलियक आर्टरी, और यहाँ से ये निकली हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी, दिस इज IA। ठीक, इसकी एक ब्रांच आ रही है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। इफ आई जूम इट मोर, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, द ब्रांच कमिंग इज सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। अब लुक ओवर हेयर, ये सुपीरियर वेसिकल कहाँ पे कंटिन्यू करती है, इट इज कंटिन्यूइंग ओवर हेयर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिटेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। यही था हमारा क्वेश्चन और ये हमारा आंसर, बेसिक याद रखिए। ओके, तो देयरफॉर आंसर हमारा हो गया उस क्वेश्चन में इंटरनल इलियक आर्टरी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, अ 7-year-old गर्ल इज ब्रॉट टू द फिजिशियन बिकॉज ऑफ स्मॉल मास ऑन हर एंटीरियर नेक। गर्दन में आ गई मास है 7 साल की बच्ची में। फिजिकल एग्जामिनेशन शोज अ मोबाइल मास ऑन द मिड लाइन ऑफ द नेक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज देखिए, मिड लाइन में एक मास है, सो मिड लाइन ऑफ द नेक अबव द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर, दैट एलिवेट्स अपॉन प्रोट्रूशन ऑफ द टंग। डायग्नोसिस क्लियर। सो ये मास इट एलिवेट्स ऑन प्रोट्रूशन ऑफ द टंग, इट मीन्स ये जो मास है हैज सम डायरेक्ट कनेक्शन विद द टंग। टंग और इस मास का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है। द मोमेंट द पेशेंट प्रोट्रूड्स द टंग, टंग बाहर निकालता है, मास हल्का सा ऊपर उठता है, और टेस्ट में होता है, यू कैन होल्ड द मास लाइक दिस बिटवीन योर 2 फिंगर्स, 2 उंगली के बीच में मास पकड़िए और पेशेंट से बोलिए जी बाहर निकालिए, मास खींचेगा ऊपर। दिस मास हैज मोस्ट लाइकली डेवलप्ड फ्रॉम रेमिनेंट। सो टंग से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोलॉजिकली, क्या कनेक्शन है जो कोई स्ट्रक्चर नीचे आ रहा हो और गर्दन में डेवलप होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है हमारा थायराइड ग्लैंड। क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है थायरोग्लॉसल डक्ट, थायरोग्लॉसल डक्ट, थायरो मतलब थायराइड, ग्लॉसल मतलब टंग, तो डक्ट है जो कि टंग से निकलती है, नीचे आती है, गोज टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक, फॉर्म्स द थायराइड ग्लैंड। अब इस डक्ट में कहीं पर रास्ते में सिस्ट बन जाए, वो मिड लाइन में प्रेजेंट करेगा, एंड देयरफॉर इट हैज टू बी थायरोग्लॉसल सिस्ट। ऑप्शन देखें कहीं है, आप बिल्कुल है, वी हैव थायरोग्लॉसल डक्ट ओवर हेयर विच इज गिविंग राइज टू द थायरोग्लॉसल सिस्ट ओवर हेयर। ठीक, देखते हैं यहाँ पर, दिस इज द इमेज ओवर हेयर। अगर मिड लाइन में मिला, इट इज मोस्ट प्रोबब्ली थायरोग्लॉसल सिस्ट। ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड आउट द टंग, सो टू जस्ट कंफर्म द डायग्नोसिस क्लिनिकली। अगर मास यहाँ मिले हमें साइड में, अगर मास हमें साइड मिलता है इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड एंड विच डज नॉट प्रोट्रूड, जो टंग बाहर निकालने से प्रोट्रूड नहीं करता है, देन वी कैन थिंक ऑफ ब्रैंकियल सिस्ट। यहाँ पर हम ब्रैंकियल सिस्ट का सोचेंगे। ठीक, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट एक और इमेज है, शो यू एम्ब्रियोलॉजिकली दिस एरिया इज अवर टंग। ठीक है, टंग के पीछे फोरामेन सीकम है, जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट। हमने एक वीडियो किया टंग पे, द होल एनाटॉमी ऑफ टंग, डू प्लीज चेक इट आउट। और यहाँ फोरामेन सीकम से द डक्ट गोज डाउन एंड यू कैन सी इट इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, फाइनली ये बन गया हमारा थायराइड ग्लैंड। इफ आई में हाईलाइटेड इन दिस मैनर, ये बना हमारा थायराइड ग्लैंड विद द पिरामिडल लोब ओवर हियर। ठीक, ये हमारा पूरा ट्रैक है ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट ओवर हियर। तो यहाँ पर ये सिस्टम बन गई विच वॉज प्रेजेंटिंग इन द क्वेश्चन। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ सेक्शन एंड द डिविजन्स रिजल्टेड। एकदम बेसिक क्वेश्चन, जनरल एनाटॉमी। कौन सा सेक्शन से किस टाइप के पेयर ऑफ स्ट्रक्चर निकलते हैं। वी शुड नो सजाइटल, कोरोनल, हॉरिजॉन्टल, बेसिक है। सेट सेक्शन इस तरह से होता है, इसमें बॉडी राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं, सुपीरियर इंफीरियर नहीं। कोरोनल सेक्शन कुछ इस तरह से कटता है, बॉडी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड होती है, ना कि सुपीरियर इंफीरियर में। हॉरिजॉन्टल इज लाइक ट्रांसवर्स सेक्शन, बॉडी डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट। आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी ओवर हेयर। इसे और थोड़ा लाइट कलर से करें तो ये बन गया हमारा आंसर। सर ये सेक्शन एक बार रिवाइज करा दीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, इमेज देखिए, अपना रिविजन हो जाएगा। दैट इज अ कोरोनल सेक्शन, इसका दूसरा नाम फ्रंटल सेक्शन है। डिवाइड्स द बॉडी इनटू विच पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, याद रखिए। ट्रांसवर्स सेक्शन और हॉरिजॉन्टल डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स, and then you have a sagittal section divides the body into right and left parts. Simple. चलिए let's come to question number 5th. 26-year-old man suffers from a fractured tibia. Tibia टूट गई, फ्रैक्चर हो गया. Which of the following structures would likely produce acute pain from the fractured tibia? एकदम बेसिक क्वेश्चन। हड्डी टूट गई, दर्द आ रहा है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि दर्द लेके जा रहा है, जो कि हड्डी टूटने का दर्द किस स्ट्रक्चर से होता है? Which structure is responsible
or carrying the pain in a fractured bone. Options are nerves in compact bone, nerves in trabecular bone, surrounding muscles and tendon receptors, nerves in periosteum. आंसर इसको याद रखिए, नर्व्स इन पेरियोस्टियम होता है। अच्छा सवाल है, आ सकता है पेरियोस्टियल, बिकॉज अगर आप फ्रैक्चर की डेफिनेशन देखें ऑर्थोपेडिक्स में, द कॉर्टिकल ब्रेक, देयर हैज टू बी कॉर्टिकल ब्रेक, सो व्हेन देयर इज अ कॉर्टिकल ब्रेक देयर इज अ पेरियोस्टियम ब्रेक आल्सो, है ना, एंड देन फ्रॉम देयर द नर्व्स आर लोकेटेड इन द पेरियोस्टियम, दे आर द वंस व्हिच आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर एमिनेटिंग द पेन। तो ये याद रखिएगा आप। फाइन, सो कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन reveals damage of the preganglionic sympathetic nerve cell bodies। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, preganglionic sympathetic nerve cell bodies, which site is most likely damaged in this patient? Basic anatomy, again general anatomy, autonomic nervous system has two components, parasympathetic, sympathetic। parasympathetic craniosacral outflow, cranial कौन सी नर्व्स हैं, 3, 7, 9, 10, 3rd, 7th, 9th and 10th, oculomotor, facial, glossopharyngeal and villus। सैक्रल क्या है यहाँ पे, S2, S3, S4, बात खत्म। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक हैज अ थोरैको-लंबर आउटफ्लो, इट हैज अ थोरैको-लंबर आउटफ्लो, मतलब माने ये T1 से लेके L2 तक, फ्रॉम द स्पाइन कॉर्ड ओनली इट इमर्जेस आउट। कहाँ पर, स्पाइन कॉर्ड हैज अ ग्रे हॉर्न, जिसमें कि हमारा वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट आता है। द ऑटोनॉमिक सिस्टम दे कम फ्रॉम द लेटरल पार्ट, लेटरल ग्रे हॉर्न से निकलते हैं। Now they are asking me preganglionic sympathetic क्या nerve cell bodies, ना कि nerves, not the axons, they want cell bodies कहाँ है, cell bodies spinal cord के lateral horn में होती है, we'll see in the image as well, but इतना अगर फंडा क्लियर है ऑप्शंस में आसान मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। और ऑप्शन देख लीजिए, रूल आउट कीजिए। ब्रेन स्टेम से तो वी हैव द cranial nerves coming out, sympathetic ganglia, ganglia is where the post ganglionic cell bodies होंगी यहाँ पर, है ना, गैंग्लिया में क्या होंगी, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, अगेन यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज होंगी, कुड बी ऑफ द पैरासिम्पैथिक एज वेल। आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी। इफ यू लुक एट दिस इमेज, इस इमेज में आप देखिए यहाँ पर, अगर स्पाइनल कॉर्ड में ध्यान दीजिए, सो समवट ओवर हियर वी हैव अ लेटरल हॉर्न फ्रॉम T1 to L2, वहाँ से निकलती हैं सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व सेल बॉडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7th ओवर हियर। 67-year-old, old age, presents with the shingles on his left forehead, upper eyelid and the bridge of the nose as shown in the figure। Again very well see, shingles, herpes zoster, right? So कहाँ का लोकेशन क्या है, लोकेशन हमारी फोरहेड में है, अपर आईलिड में है, ब्रिज ऑफ द नोज। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं बताइए कौन सी सेंसरी नर्व, बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम इन ऑफ द सेंसरी नर्व, बिकॉज जो हर्पीज वायरस है इट सिट्स ऑन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, जो कि हमारा सेंसरी रूट गैंग्लिया है। सो अगर एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, फोरहेड, अपर आईलिड, लोअर नहीं अपर आईलिड, ठीक है, ये वाला एरिया है। यहाँ चेहरे की सेंसेशन कौन ले आ रहा है, इट इज कैरिड बाय द ट्राइजेमिनल, उसमें से ये वाला पार्ट कौन सा है, V1, V2, V3, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ V1, मतलब ऑफ्थैल्मिक डिवीजन। नाउ दे आर आस्किंग व्हिच सेंसरी गैंग्लिया, कौन सा सेंसरी गैंग्लिया है इज अफेक्टेड, ऑब्वियसली ट्राइजेमिनल गैंग्लिया होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, रूल आउट करते चलें। ओटिक गैंग्लिया पैरासिम्पैथेटिक होता है, नॉट सेंसरी। सीलियर गैंग्लिया भी पैरासिम्पैथेक है, सुपीरियर सर्वाइकल इज सिंपैथेटिक गैंग्लिया। आंसर ये बना हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। लुक ओवर हियर, स्पाइन कॉर्ड दोबारा, दिस इज द स्पाइनल गैंग्लिया, ये हमारा स्पाइनल गैंग्लिया है ना, विच इज एक्चुअली द वन दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। इसी को बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया, राइट, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। फाइन, चलिए आगे बढ़े। 8th क्वेश्चन, 75-year-old man tells his physician he has been having progressively more trouble opening his left eye because his upper eyelid tends to droop। देखिए जब हम आंख बंद करते हैं खोलते हैं, ध्यान से देखिए, which eyelid is moving, it is the upper eyelid, it is the upper eyelid that is actually moving। अब वो कह रहा है 75-year-old का कि लेफ्ट आई खुल नहीं पा रही, मतलब दोनों आंख खोलते हैं, लेफ्ट आई ऐसे खुल नहीं पा रही है, लेफ्ट आई इज नॉट एबल टू, हैज हैविंग ट्रबल ओपनिंग हिज लेफ्ट आई बिकॉज हिज अपर eyelids tend टू ड्रूप, ड्रूप मतलब ऐसे खोल के धीरे धीरे नीचे बंद हो रही है ना। विच मसल इज मोस्ट लाइकली वीकनेड, तो भाई जो मसल अपर आईलिड को खोलती है, इट एलिवेट्स द अपर आईलिड, अगर वो मसल वीकन है तो अपर आईलिड ड्रूप करेगी। सो विच मसल्स ओपन्स और विच मसल एलिवेट्स द अपर आईलिड, ठीक है, लेट्स सी। अपर आईलिड को कौन, तो उसका मसल का नाम ही है टू एलिवेट द अपर आईलिड, उसको बोलते हैं लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस। ऑप्शन नंबर
सी है यहाँ पर, देखिए कैसे है, नाम कैसे है, लिवेटर मीनिंग टू एलिवेट, लिवेटर मतलब एलिवेट है, पेल्पेब्री मीन्स आईलिड, सुपीरियरिस मीन्स अपर आईलिड। सो एलपीएस में प्रॉब्लम आ गया, ओके, विच मसल इज मोस्ट लाइकली वीक इन एलपीएस। नाउ ऑल्सो यू शुड नो इट इज सप्लाइड बाय विच cranial nerve, it is supplied by cranial nerve number 3 मतलब oculomotor, oculomotor nerve से सप्लाई करती है एलपीएस को। बाकी देखिए ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओकुला क्या करेगा, इट विल क्लोज द आईलिड, उल्टा है, ठीक। फ्रंटालिस मसल इज एक्चुअली लाइंग ओवर हियर इन द फ्रंट फोरहेड, हालांकि फ्रंटालिस आल्सो हेल्प्स इन ओपनिंग द आईलिड, मतलब हम आईलिड ऊपर खोलते हैं, ऐसे ऐसे बंद है आँख, खोलेंगे और ऊपर अगर देखते हैं, राइट, देन यू सी हॉरिजॉन्टल लाइंस ओवर हियर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रंटालिस आल्सो। Superior rectus, it is for movement of the globe, it is more the movement of the eyeball, not the upper eyelid. आंसर यहाँ बनेगा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एलपीएस ओवर हियर। यहाँ पे हम देख लें मसल जो यहाँ पे जिक्र हुआ है, फ्रंटालिस मसल, ऑर्बिकुलरिस ओकुला यहाँ पर है, then there is also orbicularis oris and other few muscles. Remember most of the facial muscles जो यहाँ पे they are supplied by facial nerve, but LPS is supplied by the oculomotor nerve. चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9th, 44-year-old falls from a tree and develops a severe scalp hematoma, मतलब यहाँ सर पे हेमाटोमा आ गया, मतलब सर पे सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, ऑब्वियसली हैज टू बी हेमाटोमा। द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, कौन सी आर्टरी है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी कंटिन्यूज टू ब्लीड इंटरनली बिकॉज द मैन टेक्स वारफेरिन सोडियम फॉर एन आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व, कंडीशन है ही इज टेकिंग वारफेरिन, सो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज ब्लीडिंग चल रही है वहाँ पे, स्कैल्प हेमाटोमा हो गया है एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ब्लीड कर रही है। Which of the following arteries may be ligated to control the bleeding? देखिए typical clinical question which I already discussed in my previous videos, वो FMGE top 10 topics भी जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या उसमें है, we have discussed the main topics, go through that as well, छोटा सा वीडियो है। बट देखिए यहाँ पे कंडीशन है स्कैल्प हेमाटोमा, आर्टरी है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज सुपरफिशियल, उसका नाम ही सुपरफिशियल है, इट मींस इट इज लाइंग वेयर इन द स्कैल्प, स्कैल्प में लाई कर रही है और ये ब्लीड कर रही है। यहाँ पूछा गया है कि डू यू नो इट इज कमिंग फ्रॉम और इट इज अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज अ टर्मिनल ब्रांच, इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी विच इज रनिंग इनसाइड पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी आर्टरी है वो, एक और हिंट लो, इट कम्स फ्रॉम कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड से वो आर्टरी आती है और पैरोटिड के अंदर रन करती है और उसकी टर्मिनल ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। विच आर्टरी इज दैट, दैट इज अवर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बात खत्म। What is the other terminal branch? Other terminal branch is maxillary artery, the largest branch, the larger branch. ये देख लीजिए यहाँ पर, this over here is telling us all about the external carotid artery, and here you can see its terminal branches, एक superficial temporal है, एक हमारी maxillary है। अब ये जो temporal artery, it is going towards the scalp and it was the one that was actually bleeding. Question, ठीक। चलिए let's come to the last question of the session. 22-year-old man receives a stab wound in the left anterior cervical region, मतलब आगे यहाँ पर स्टैब वुंड हो गया, एंटीरियर सर्वाइकल मतलब गर्दन में आगे, एट द C2 वर्टिब्रल लेवल, C2 मतलब थोड़ा ऊपर है, हाइट इज एट अराउंड C3 और ऊपर। द वुंड वाज 3 सेंटीमीटर डीप एंड लोकेटेड एंटीरियर टू द स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल, 3 सेंटीमीटर डीप, करीब करीब मान लीजिए इतना डीप है, एंड SCM के आगे, तभी एंटीरियर सर्वाइकल रीजन इसको बोला गया, राइट। एंड सुपीरियर टू ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइड बोन, मैंने बोला था हाइट इज अराउंड C3, तो उसके ऊपर तभी तो C2 है, यहाँ पर तो वर्टिब्रल लेवल्स भी रिवाइज होते चले जाएंगे। ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन द पेशेंट डिस्प्लेज व्हाट, डिसआर्थरिया और मोर डिफिकल्टी स्पीकिंग। डिसआर्थरिया जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एन प्रॉब्लम इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, डिसआर्थरिया उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली डैमेज, गर्दन में यहाँ चोट लगी हाइट के ऊपर, 3 सेंटीमीटर डीप, देयर इज अ स्टैब वुंड above the hyoid bone, and apart from all these local जो भी इंजरी, टिश्यू इंजरी हुई है, the patient is also having difficulty in speaking, ना बोलने में दिक्कत हो रही है। Asking which structure is most likely damaged, देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर रूल आउट करते चलेंगे। हाइपोग्लॉसल नर्व, डू यू थिंक हाइपोग्लॉसल नर्व इज लोकेटेड ओवर हियर? हाइपोग्लॉसल मतलब क्या है, टंग के नीचे, टंग ये है, टंग के नीचे, इज इट लोकेटेड ओवर हियर? आंसर इज यस, दिस नर्व इज लोकेटेड इन द कैरोटिड ट्राइंगल। तो ये, और इस दूसरे पॉइंट, कैन डैमेज टू हाइपोग्लॉसल नर्व लीड टू डिफिकल्टी स्पीकिंग, भैया टंग पैरालाइज कर गई है तो स्पीकिंग प्रॉब्लम आएगी। इफ द टंग इज पैरालाइज देयर विल ऑब्वियसली बी प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, बिकॉज अब मैं सब बोल रहा हूँ, यू ऑल्सो गाइज स्पीक, पता है बोलते समय टंग मूवमेंट चाहिए। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन ओवर हियर, लग रहा है ये आंसर। दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
Accessory nerve. The accessory nerve runs posteriorly. It supplies sternocleidomastoid and trapezius. अगर ये डैमेज होती है, पहली बात तो ये डैमेज आगे होती नहीं, इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल, तो एक रूल आउट ही कर दो। दूसरी बात है, इफ इट इज डैमेज देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, सो इसे रूल आउट कीजिए, लग नहीं रहा आंसर है। मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। नाउ मैंडिबुलर नर्व कम्स फ्रॉम द फोरामेन ओवल, ऊपर से आ रहा है, यहाँ बेस ऑफ स्कल फोरामेन है, यहाँ से आ रहा है, एंड देन द मैंडिबुलर नर्व डिवाइड्स इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सप्लाइंग द मैस्टिकेटरी मसल्स। ठीक है, तो लोकेशन नहीं है इसकी, इट इज नॉट लोकेटेड एट C2, इट इज लोकेटेड क्वाइट हायर अप, प्लस डायरेक्टली स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, उतनी मेजर नहीं आएगी, बिकॉज मेनली मैस्टिकेटरी में प्रॉब्लम आएगी। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज माइलोहाइड एंड बेलियो डाइगेस्ट्रिक भी डैमेज हो सकती है, बट लोकेशन मैंडुलर की यहाँ है नहीं, इट इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड देन इट डिवाइड्स ओवर हेयर, रूल आउट हो गया। लिंगुअल ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो 9th नर्व है, इसकी लिंगुअल ब्रांच इज एक्चुअली टोटल सेंसरी, है ना, तो सेंसरी ब्रांच होगी, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और फॉर एनी प्रॉब्लम इन डिफिकल्टी स्पीकिंग। बचा क्या हमारा आंसर, पहले ही मिल गया था आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज अ हाइपोग्लॉसल नर्व। इसकी लोकेशन यहाँ पे देखते हैं, इमेज देखिए यहाँ पर, ये लोकेशन देखिए इसकी, दिस अ ब्यूटीफुल इमेज ओवर हियर, दिस ओवर हियर इज द लोकेशन ऑफ द हाइड बोन, ये हमारा हाइड बोन है, इसके जस्ट ऊपर चोट लगी है, यू कैन सी ओवर हियर, ये हमारी नर्व है, अगर इफ आई पॉइंट इट आउट लाइक दिस, ये येलो कलर ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, दैट इज द 12th नर्व, एंड द 12th नर्व ओवर हियर यू कैन सी इट इज गोइंग डाउन बिकॉज ये टंग के नीचे से एंटर करती है, नाम ही इसका हाइपोग्लॉसल है, इट इज एंटरिंग जस्ट, इट इज एक्चुअली लूपिंग अराउंड विच मसल, which artery, it loops around lingual artery, the lingual artery के around loop करना के then it enters the tongue passing from below the tongue। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पे जीनियोग्लॉसस मसल दिखाई इन्होंने, मेन मसल ऑफ द टंग, तो ये बेसिकली दिस रीजन इज ऑफ द टंग रीजन। ठीक है, बाकी आर्टरीज दिखा दी यहाँ पे, दिस प्रॉब्ली ओवर हेयर विल बी द लिंगुअल आर्टरी, ये हमारी होगी यहाँ पे लिंगुअल आर्टरी, राइट। सो दैट्स ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।